Very good morning, children. Welcome to the SST classroom. How are you all, children? I hope you all are fine and studying properly. And I just hope you all are watching the videos on a regular basis. I have started to teach you all the history. Okay? Now, I am going to start the new chapter. I had completed in history the chapter new questions and idea. Okay, first you write down the date. Today is 27. Your class 6 SST. The chapter which we are discussing over earlier is the chapter name is New Question and Idea. After that chapter, move to the next chapter. After the New Question and Idea, the chapter which you all have to study is about the Ashoka. Ashoka, the emperor who gave up war. Page number 75. Chapter 8, Ashoka, the emperor who gave up war. Ashoka, the emperor who gave up war. I hope the chapter 8 name is visible to you all. Okay. The chapter Ashoka, the emperor who gave up war. नाम में ही पता चल रहा है कि दिस चैप्टर इज अबाउट द अशोका. अशोका एक बहुत ही फेमस राजा थे और इनका एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था. One of the stories given in your book, it is the story of Roshan's rupees. Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. When she badly wanted to buy a new cassette, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for, she wondered. नोट समझते नोट्स जो होते हैं रुपीज़, कॉइन्स नहीं, रुपीज़ जो नोट्स होते हैं उसमें महात्मा गांधी जी की पिक होती है, फ़ोटो होती है. लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लायंस के फ़ोटो होते हैं. वहाँ से स्टोरी चालू होती है अशोका की. अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. The lion that we see on our notes and coins have a long history. Coins पे भी होते हैं lion, जिसको लेके बच्चे खेलते भी हैं कि which side of the coin will came, head or tail. In the head you will find out the lions. The lion that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone.
and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. सारनाथ जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको लायंस बने हुए दिखते हैं। अशोका उसका सिंबल है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on wrought surfaces. अशोका एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत ही फेमस एम्परर थे, बहुत ही बड़े रूलर थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है पता है ना? इंस्क्रिप्शन हार्ड वर्ड से इंस्क्रिप्शन आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। जो स्टोन्स या फिर वॉल्स पे लिखे होते हैं ना, वो इंस्क्रिप्शन होते हैं। वो उसको कोई रब नहीं कर सकता। इंस्क्रिप्शन आर दो थिंग विच कान बी इरेज्ड। एक तरह से दे फिक्स एट दैट वन, इंस्क्राइब्ड है, फिक्स है, ठीक है। तो अशोका जो एम्परर थे उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन को, ये जो इंस्क्राइब किया था पिलर्स पे एज वेल एज ऑन रॉड सर्फेसेस। बिफोर वी फाइंड आउट what was written in these inscription, before we find out what was written in these inscription, let us see why his kingdom was called an empire. So सबसे पहले इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अशोका के बारे में। अशोका के किंगडम को एम्पायर को कहा जाता है। We will study about the अशोका द ग्रेट। इतने फेमस थे, इनके नाम के आगे, सबके नाम के आगे आपको द ग्रेट नहीं लिखा है, बट अशोका के आगे द ग्रेट जाएगा। अशोका द ग्रेट। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather. जो एम्पायर जिस पे अशोका राज करते थे वो उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने मोर देन 2300 ईयर्स एगो। तो ये पॉइंट है सबसे पहला, चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya is the grandfather of Ashoka. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, हिस्ट्री में उसका नाम फेमस है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वो नाम है चाणक्य। नाम है चाणक्य या कौटिल्य। इसका नाम है चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या कौटिल्य। Many of Chanakya ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज जो हैं एक बुक में भी लिखे गए थे जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र। इट इज़ कॉल्ड द चीज़ें लिखी गई थी उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। स्पेलिंग नोट नहीं करेंगे, SHASTR। अर्थशास्त्र। अभी तक हमने बच्चों क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हमने डिस्कस किया जो नोट्स और पॉइंट्स में वो लाइन बने होते थे, ये अशोका के ही एम्पायर से सिंबल। सारनाथ में बहुत बड़ा स्तूपा इसका बना होता है। अशोका
का जो ये एम्पायर है उसको उनके दादाजी से मिला है, और वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त तो कोई एक आदमी था जो एक वाइज मैन था, सपोर्ट करते रहता था, एंड दैट वाइज मैन नेम्ड चाणक्य। उसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसे कहते थे अर्थशास्त्र। ठीक है, अ वेरी बिग किंगडम। अशोका की बहुत बड़ा राज्य था, साम्राज्य था। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। डायनेस्टी क्या होती है? व्हाट इज डायनेस्टी? When members of the same family became rulers one after another, the family is often called a dynasty. डायनेस्टी क्या होती है? ये भी एक हार्ड वर्ड है। कौटिल्य के बारे में जो चीज़ें हैं जिस बुक में लिखी गई हैं वो अर्थशास्त्र है। चाणक्य और कौटिल्य, चाणक्य के कहूँ या उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ के हो। डायनेस्टी हार्ड वर्ड है। डायनेस्टी किसे कहा जाता है? आपको कहीं मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, इस तरह से वर्ड आएंगे। मौर्य डायनेस्टी, अशोका डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी मीन्स अगर मान लीजिए एक ही फैमिली के रूलर्स उस पूरे अम्पायर को चला रहे हैं तो इट इज़ नोन एज डायनेस्टी। जैसे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका। अभी आप पढ़े, मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इम्पॉर्टेंट रूलर। चंद्रगुप्त, his son बिंदुसारा, and बिंदुसारा सन अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके बेटे थे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बेटे थे अशोका। तो ये एक डायनेस्टी है, एक मौर्यन डायनेस्टी है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन योर बुक, आपके बुक में एक मैप है, मैप नंबर 5। ये मैप में आपको मौर्यन अम्पायर के बारे में पूरा दिया है, शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज़ एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। तो जैसे रेड डॉट्स में वो जगह हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और ब्लैक डॉट्स में वो प्लेसेस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। So there are several cities in the empire. There are several cities in the empire. इनके एम्पायर में, इनके राज्य में बहुत सारे सिटीज़ थे, इम्पॉर्टेंट सिटीज़। जैसे कि दिस इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र, टैक्सिला एंड उज्जैन। ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे, पाटलिपुत्र, टैक्सिला एंड उज्जैन। टैक्सिला जो था वो, टैक्सिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का वो एक तरह से गेटवे था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वेयर वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट, अगर मैप में आप डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी ये एरिया, अगर मैप आप देखेंगे तो मैप में ये एरिया, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है ये टैक्सिला जो था वो गेटवे था, नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, और सेंट्रल एशिया का। ठीक है, वाइल उज्जैन जो है वो ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। ये नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया का ले रूट था उज्जैन। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रॉबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़। इन शहरों में यही सारे लोग ज़्यादा रहते थे, मर्चेंट्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, या क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, दे प्रॉबेबली लिव्ड इन दिस सिटी। इसीलिए आई थिंक यू ऑल हैव ऑब्जर्व्ड
and knows that these cities are very famous for these kind of thing. Like उज्जैन का नाम बहुत फेमस है क्राफ्ट से रिलेटेड, उज्जैन की साड़ियाँ, उज्जैन के कपड़े, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ये सब जगहों पे मर्चेंट्स और ऑफिशियल्स ज़्यादा रहते हैं, तो ये उसी चीज़ों के लिए फेमस भी है। ठीक है। In other areas there were villages of farmers and herder। बाकी जो अदर एरिया, ये इम्पोर्टेंट सिटी है, ये जो 3 मैंने नाम बताया, प्लीज़ इनके नाम लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट सिटी cities। पहला पाटलिपुत्र, PATLIPUTR, पाटलिपुत्र। दूसरा तक्षशिला। तीसरा उज्जैन। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये 3 इम्पोर्टेंट सिटीज हैं। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको मर्चेंट्स, इस जगहों में मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन मिलेंगे। ठीक है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल और क्राफ्ट पर्सन। ठीक है। इनके अलावा और भी जो सिटीज़ थी वहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स थे और हर्डर्स थे। फार्मर समझते ही हो आप, हर्डर्स जो जिनके पास झुंड होते हैं, जैसे किसी चीज़ का, जैसे काउस का हर्ड है या शिप का है, तो हर्डर्स थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट where people gathered forest produce and hunted animals for food। तो ये जो अशोका का पूरा जो ये राज्य था, ये डिफरेंट सिटीज़ में डिवाइडेड था। कुछ सिटीज़ में जैसे कि बड़े बड़े लोग रहते थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन। कुछ पार्ट में फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे। कुछ पार्ट उनके स्टेट का, उनके राज्य का स्प्रेड था फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ लोग जो थे, द पीपल यूज टू गैदर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, एनिमल्स को हंट करते थे फॉर द फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। दे प्रॉबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एज वेल। खाना भी उनका अलग तरीके का होता था और कपड़े भी वो अलग तरीके के पहनते थे। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड दिस वन अप टू दिस वन। ओके, सो यहाँ तक हमने समझा अशोका के बारे में कि अशोका एक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, एंड दैट डायनेस्टी इज मौर्य डायनेस्टी। फर्स्टली द चंद्रगुप्त मौर्य केम, एंड देन द बिंबिसारा, एंड देन कम द अशोका। बिंदुसार, सॉरी, द वर्ड इज बिंदुसार, एंड देन कम द अशोका। अशोका का एम्पायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। What are the things covered in that empire I discussed with you right now? Okay, so just do the revisions, children. Revisions करेंगे आप? Fine, चलिए।
One of the point is given here, how are empire different from the kingdom? किंगडम से एम्पायर कैसे डिफरेंट होता है, ये आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। हमने ये भी जाना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं थी अशोका के एम्पायर में, और उसमें किस तरीके के लोग आते थे। एम्पायर कैसे डिफरेंट है किंगडम से? एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, कैसे एम्पायर जो है वो किंगडम से डिफरेंट है। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? So emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdom and need to be protected by big armies. See, what is the difference between empire and kingdom? Empire kingdom से बड़ा होता है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। empire is larger than the kingdom, और इसीलिए एम्परर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं देन द किंग्स। किंगडम को जो रूल करते हैं उन्हें हम किंग्स कहते हैं, राजा, ठीक है। और एम्पायर को जो रूल करते हैं, जिनके पास एम्पायर होता है, उनको हम कहते हैं एम्परर। तो अशोका एम्परर थे, ठीक है। उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे, नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग, क्योंकि उनका एम्पायर जो होता है बड़ा होता है किंगडम से, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मी। बड़ा होने की वजह से, बिग होने की वजह से उनको बड़ी बड़ी आर्मीज भी रखनी पड़ती थी अपने एम्परर को, अपने एम्पायर को बचाने के लिए। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। सिमिलरली बीइंग अ बिग एम्पायर, बड़ा एम्पायर होने की वजह से, बड़ा किंगडम होने की वजह से, बड़े किंगडम को आप एम्पायर कह सकते हो, बड़ा किंगडम होने की वजह से उन्हें ऑफिशियल्स लोग भी और चाहिए थे जो टैक्सेस कलेक्ट करें। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। रूलिंग द एम्पायर, रूलिंग द एम्पायर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, एम्पायर जो होता है बड़ा होता है, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। रूलिंग द एम्पायर, कैसे आप एक एम्पायर पे रूल करेंगे। सो एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। एम्पायर जो होता है बड़ा होता है, तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एम्पायर में, तो हर एक पार्ट को अलग तरीके से रूल किया जाता है। जैसे द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। ये चीज़ें आपकी जानने वाली हैं। जैसे पाटलिपुत्र का जो एरिया है, पुत्र एरिया, ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है एम्परर का। इस पर पाटलिपुत्र का जो एरिया है उस पर एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। डायरेक्ट उस एम्परर जो होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड to collect taxes from farmers, herder, craftsperson and trader who lived in villages and towns in the area. Officials यहाँ पे अपॉइंट होते हैं टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। Officials also punished those who disobey the ruler's order.
जो रूल कर रहा है उस समय उसके ऑर्डर को अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो वो उन्हें पनिश भी करते हैं। Many of these officials were given salaries, इन्हें सैलरी दी जाती थी। Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials. Messenger went to and fro and spies kept a, बट कुछ जासूस भी थे, स्पाइस में जासूस भी थे जो इन ऑफिशियल्स पे नज़र रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, उनको एम्परर ही सुपरवाइज करते थे। विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर, ऑफिशियल्स जो अपॉइंट होते थे उनको सैलरी दी जाती थी, उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए कहा जाता था, या जो डिसओबे करें उनको पनिश करना है। पर उनके ऊपर भी कोई थे जो उन्हें देखते थे, और वो थे रॉयल फैमिली के ही कुछ मेंबर्स या फिर कोई सीनियर मिनिस्टर। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, कुछ दूसरे एरियाज भी थे, जैसे ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज टैक्सिला और उज्जैन। Although there was some amount of control from Pataliputra, and royal princes were often sent as governors, local custom and rule were probably followed. देखो क्या हो रहा था। Okay. So understood that empire में कैसे कैसे लोग क्या काम कर रहे थे। इन द एम्पायर देयर वर सम officials who collect the taxes and punish also to the people who disobey the rule. There were some spy which were the part of the royal family or the minister who look after them, okay, which directly under the control of the emperor. कुछ अदर एरियाज या प्रोविंसेस थे जैसे कि टैक्सिला और उज्जैन। Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local custom and rules were probably followed. कुछ अलग सिटीज़ थे जैसे कि उज्जैन और टैक्सिला में, वहाँ पर भी रॉयल प्रिंसेस एज अ गवर्नर के फॉर्म में काम करते थे उस जगह के। जो रॉयल प्रिंसेस मतलब जो एम्परर के बेटे हैं, राजकुमार जो लोग होते थे, तो रॉयल प्रिंसेस जो थे वो एज अ गवर्नर वहाँ पे काम करते थे, वर्क करते थे। लोकल कस्टम्स और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। Besides, there were vast area between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which are important for. Besides this, there are vast area between these centers. इन सब के अलावा भी कुछ बहुत बड़ा एरिया था इन सबों के बीच में, between these centers, जहाँ पे मौर्य जो थे वो चाहते थे कि try to control the roads and river which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tell us, अर्थशास्त्र में ये लिखा था कि नॉर्थ वेस्ट was important for blankets and South India for its gold and precious stone. It is possible that these resources were collected as tribute. There were also the forested regions. कुछ forested regions भी थे. People living in these areas were more or less independent थे, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. ठीक है, मतलब हर एक किसी से टैक्स लिया जा रहा है। इवन द रिवर्स, रोड्स को भी अपने अंडर कंट्रोल में कर रहे हैं। फॉरेस्ट रीजन्स में भी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हाथी या टिम्बर, हनी, बैग्स, ये सब मॉडर्न ऑफिशियल्स को दे प्रोवाइड करें। तो फॉरेस्ट रीजन से भी ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी, और एंड दे कलेक्टेड इट एज अ टैक्स और एज अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है ये आप जान लो। सी, अनलाइक द टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस,
Tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. Tribute मतलब टैक्स तो उनको देना ही देना है, either they give it willingly or unwillingly, but tribute जो होता था वो willingly देते थे. Tribute एक तरह से मतलब कि अपने से कुछ चीज़ों को ट्रिब्यूट करना नहीं बोलते हम, इनके टुवर्ड ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ट्रिब्यूटिंग द सॉन्ग. तो ऐसा खुद से कोई चीज़ देना, न्यौछावर जिसे कह सकते हो, कोई चीज़ खुद से देना, तो दैट इज़ अ ट्रिब्यूट. सो अप टू दिस वन वी हैव डिस्कस. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.